हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो 10th चैप्टर है फन विद मैग्नेट, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. You might have seen magnets, and magnets have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surface, like almirahs or the doors of refrigerators? In some pins holders, the pin seems to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders, and pencils boxes have magnet fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in these. तो यहाँ पर क्या है कि जो पहेली और जो बूझो है वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह गए थे जहाँ पर क्या था, मतलब कि इंटरेस्टिंग जगह नहीं, एक जंक यार्ड में गए थे जहाँ पे खूब सारा जो कूड़ा नहीं होता, जंक वो होता है। तो वहाँ पे क्या किया गए और उन्होंने देखा कि एक क्रेन थी, उस क्रेन में एक ब्लॉक जुड़ा हुआ था। कोई एक ब्लॉक था काफ़ी बड़ा सा, वो उस क्रेन के आगे लगा हुआ था, लटका हुआ था, जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे हो। और वो सारा जंक और जितना भी आयरन पीस के जितने भी है वो सब अपनी तरफ घसीट रहा था। तो उसके बाद ये लोग उसको समझ नहीं पाए। फिर जब वो लोग घर पर आए तो उनको पता चला, उन्होंने पढ़ा कि वो जो ब्लॉक था वो एक मैग्नेट था। और वो मैग्नेट क्या करता है कि सारे जंक यार्ड से जितना भी आयरन या जंक है वो सब जंक यार्ड से निकाल लेता है। तो फिर ये तो खाली इसके कूड़ा निकालने की बात हो गई। और हम लोग जब मैग्नेट के साथ खेलते तो हम लोग को भी काफ़ी मज़ा आता है। जैसे कि जो कीज़ के जो टॉप वाली हेड होती है वहाँ पर होता है, और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज, उनकी कीज़ में भी होता है यही क्या, मैग्नेट। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है, जैसे स्टिकर्स होते हैं अलमीरास में। जो अलमीरास में जितने भी स्टिकर्स चिपके हुए हैं, ये फ्रिज में जितने भी स्टिकर्स चिपके हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, फ्रेश फ्रूट्स। तो ये फ्रेश फ्रूट्स क्या है, ये एक स्टिकर है और इसके पीछे क्या मैग्नेट लगा है, जिसकी वजह से ये उसमें चिपका होता है। ऐसे बहुत जगह होती है जहाँ पे मैग्नेट होता है। तो आप लोगों को ऐसी कुछ जगह ढूंढनी है जहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, इससे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountain for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock or a rock on the mountains. It seems as if the stick was being attracted by the rock. The rock was natural magnet natural magnet, and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. Such rocks were
Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of the after the name perhaps after the name of that shepherd. Magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia, the substance having the property of uh, attracting iron sorry attracting iron and attracting attracting iron are known attracting iron are now known as magnets. दिस इज हाउ द स्टोरी गोज इन एनी केस। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक लड़का था कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर करे गए। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे करे गए। तो एक लड़का था, उसका नाम उसका नाम था मैग्नेस, ये देखिए लिखा होगा मैग्नेस। तो वो एक शेफर्ड था। वो अपनी गोट्स और शिप को माउंटेन्स में आया था ग्रेजिंग कराने के लिए, घास चराने के लिए। फिर क्या हुआ कि उसके पास एक स्टिक थी, उसके आगे एक आयरन लगा था, और उस आयरन में क्या था कि वो आयरन के उसके टॉप में आयरन लगा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। फिर क्या हुआ कि वो एक दिन ऐसे बैठा हुआ था माउंटेन में। तभी क्या हुआ कि उसका जो स्टिक थी वो पत्थर को मतलब कि वो पत्थर में जाकर के अट्रैक्ट हो रही थी, चिपक रही थी। फिर उसने जाकर के उसको डिस्कवर करा, क्या, मैग्नेटाइट, मतलब कि उसका नाम मैग्नेस है। फिर इस अट्रैक्शन को क्या कहने लगे लोग, मैग्नेटाइट कहने लगे। फिर धीरे धीरे मैग्नेटाइट से मैग्नीसिस हो गया, फिर मैग्नीसिस से हट करके जिसे अब हम लोग कहते हैं मैग्नेट, वो मैग्नेट बना। ऐसे ही जो स्टोरी है मैग्नेट की वो ऐसी चली आ रही है। in any case people in any case people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named the natural occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from piece of iron was discovered. These are known as artificial magnets. Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. For examples, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical magnet, or ball-ended magnet. Figure 10.4 shows a few such magnets. तो यहाँ पे क्या होता कि पहले क्या होता था कि जो मैग्नेट्स अट्रैक्टिंग जो भी स्टोन्स होते थे इन्हें मैग्नेट कहा जाता था। पर अब क्या, अब तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं उन्हें बनाने लगे। तो उसमें क्या है कि वो मैग्नेट है वो काफ़ी अलग अलग तरीके के बनने लगे। जैसे कि जो हॉर्स का जो लेग होता है उसका हॉर्स शूज शेप, यानी हॉर्स के जूते का साइज जैसे बनता है, जैसे घोड़े की नाल वैसा, जैसे यू शेप वैसा, सिलेंड्रिकल आयरन, फ्लैट आयरन, बॉल एंडेड जिसकी एंड में बॉल होती है वो वैसा आयरन अब बनने लगा, जो कि फिगर 10.4 में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है। चलो इसे भी हम लोग इस एक्टिविटी को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ clamp as shown in figure 10.5. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को आप लोगों को एक बार ले लेना है, मतलब कि एक पेपर क्लिप होती है उसे आप लोगों को ले लेना है, जो कि पेपर क्लिप आप लोगों को पता होगी क्या होगा। और आपको एक क्लैम्प ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या
आपको क्लैम्प ले लेने के बाद उसमें बीच में क्या मैग्नेट रख देना, जिससे क्या होगा कि जो पेपर क्लिप होगी वो अट्रैक्ट होने लगेगी और वो राउंड राउंड होने लगेगी और ऐसे उड़ने लगेगी जैसे कोई काइट नहीं होती, वैसे उड़ने लगेगी। ये एक्टिविटी 1 में था। अब यहाँ पे ये तो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। अब जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसे अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो एक्टिविटी 2 है, इसके पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्टिविटी 2। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेस। Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet and a magnet at the end of our shepherd stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick, hockey stick, walking stick, or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on the magnets walk through the school playground. What does our magnet stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? Collect various objects of day-to-day use from your surroundings. Test these with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with its and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 10.1 and record your observations. Look at the last column of table 10.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any materials common in all objects that were attracted by the magnet? We understand that magnet attracts certain materials, whereas some do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. For example, iron, nickel, or cobalt. The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. What materials did you find to be non-magnetic from table 10.1? Is soil a magnetic or a non-magnetic मटेरियल? तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो मैग्नेस प्लेन होता है वहाँ पे आप लोगों ने चला होगा, तो वहाँ पे ठीक है, फिर आप लोगों को कुछ स्टिक्स ले लें, जैसे वॉकिंग स्टिक, हॉकी स्टिक, और जो मैग्नेस की जो शेफर्ड की मैग्नेस की जो स्टिक थी उसके आगे भी आप लोगों को आयरन हटा करके क्या वो मैग्नेट लगा लेना है। फिर क्या करना है कि उसको लेकर के चलना है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्या चीज़ उसमें अट्रैक्ट होती है और क्या क्या नहीं होती। ये टेबल है, इस टेबल को हम लोग समझेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो क्या, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक्स, मैग्नेट, यस और नो। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ऐसी चीज़ों का नाम बताया जाएगा और फिर उसका मटेरियल बताया जाएगा कि वो किस चीज़ का बना है। फिर पूछा जाएगा कि वो मैग्नेट की जो स्टिक है उससे अट्रैक्ट होगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फिर क्या, आयरन बॉल। तो आयरन बॉल का क्या है मटेरियल? आयरन है, और आयरन मैग्नेट की स्टिक से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? मैग्नेट की स्टिक में क्या लगा है? मैग्नेट लगा है। फिर क्या है? स्केल। स्केल किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है, और प्लास्टिक मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? नो। फिर क्या होता है? लेदर। शू का मटेरियल क्या? लेदर। अब लेदर क्या? प्लास्टिक। लेदर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से? नो। तो इसका आंसर क्या है? नो। अब इधर एक कॉलम खाली है, तो उसको हम लोग अपने तरफ से भर देते हैं। क्या लिख देते हैं? टेबल। अब टेबल नाम हो गया। अब उसका मटेरियल क्या है? मटेरियल है उसका वुड। अब वुड क्या अट्रैक्ट होगा मैग्नेट स्टिक से? वो आंसर आ जाएगा नो। तो ये जब चीज़ें हम लोग को पता चलती है कौन कौन सी चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और कौन कौन सी चीज़ नहीं होती। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं उन सारी चीज़ को हम लोग कहते हैं
मैग्नेटिक उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक कहते हैं। और जो चीज़ें जो कि अट्रैक्ट नहीं होती वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं नॉन मैग्नेटिक। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अट्रैक्ट हो जाती हैं वो है मैग्नेटिक, जो चीज़ें नहीं अट्रैक्ट होती वो कौन सी चीज़ है, नॉन मैग्नेटिक। मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, pull out the magnet. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particle of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small pieces of iron fillings picked up from the soil. Through such activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in figure 10.6? Make a table of what you find. If you fill this table and send it to Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron fillings found in the soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को जो आयरन होते हैं उससे आप लोगों को सैंड और सॉइल में लगाना है और फिर उसके बाद उनको हटाने हैं। तो क्या होगा कि उसमें कुछ जो पार्टिकल्स होंगे सैंड और सॉइल के वो तो उसमें चिपक ही जाएंगे। फिर जब आप मैग्नेट को शेक करेंगे तो क्या वो जो कुछ पार्टिकल्स तो गिर जाएंगे, लेकिन तब भी थोड़े से कुछ पार्टिकल्स अभी भी मैग्नेट में सॉइल के या सैंड के चिपके रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें होती है आयरन फिलिंग्स। वो सारी की सारी चीज़ें आयरन की होती हैं। आयरन फिलिंग्स छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आयरन के, वो उसमें लगे होते हैं। तो क्या हो जाएगी, आयरन फिलिंग्स। फिर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर क्या ये फिगर 10.6 में दिया रखा है। फिर जो जो चीज़ आप लोगों को मिलेगी, आप अपने जहाँ पे आप लोगों ने विजिट करा होगा अपने हॉलीडेज़ में, क्या क्या जैसे कॉलोनी, टाउन, सिटी, विलेज, ऐसे कोई भी जगह है तो वहाँ पर आप लोगों को क्या ऐसे देख ये टेबल जो दी गई है टेबल 10.2, इससे आप लोगों को करना है। और क्या करना है कि देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप लोगों को क्या बताना है कि जहाँ पे आप लोगों ने मैग्नेट को सॉइल या सैंड में मिक्स करा है, कौन सी जगह में करा है, मैंने तो कॉलोनी में करा है तो कॉलोनी में कर दूंगा। फिर डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट, और फिर बताना है कि उस जगह मैग्नेट कितना चिपका। तो देखो मैंने कॉलोनी में करा तो मैं कॉलोनी लिख दूंगा, और कॉलोनी में ज़्यादा आयरन होता है क्यों, वहाँ पे कार्स आती हैं, बाइक्स आता है, फुटबॉल क्रिकेट होता है, कितना सब गेम्स होते हैं वहाँ पे कॉलोनी में। तो कॉलोनी में थोड़ा वेरी फ्यू, मैनी, नन, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैनी, वेरी फ्यू और नन। तो वेरी फ्यू कर देते हैं, थोड़ा सा ही होगा क्योंकि ना कम ना ज़्यादा, वेरी फ्यू। फिर क्या हो गया, फिर है सिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, देखो कॉलोनी सिटी में होती है, मैंने सिटी में भी कर रखा है, तो सिटी में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मैनी आ जाएगा आंसर। सिटी में मैनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आयरन उसमें चिपक जाएगा। फिर क्या है विलेज में नन के बराबर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गांव में तो ज़्यादा कार और बाइक्स होती नहीं है, वहाँ पे वुड के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या जो विलेज है वहाँ पर नन होगा। तो ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को पहेली और बूझों को ये सेंड करनी ताकि वो सारी ये पता लगा सके, कंपेयर कर सके कि किस जगह कितनी फीलिंग्स हैं आयरन की या किस जगह आयरन फीलिंग्स नहीं है। तो ये जो टॉपिक था तो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो टॉपिक है पोल्स ऑफ मैग्नेट, इसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो से हम लोग को ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। We observe that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर रखा है पहले की एक्टिविटीज से कि अगर हम लोग आयरन को उसमें फिल करते हैं तो जो आयरन मतलब कि जो आयरन फिलिंग्स होती है वो उसमें आकर के चिपक जाती है। तो इसी को हम लोग कुछ एक्टिविटीज से भी समझेंगे। वो है हमारी एक्टिविटी 4। तो अब हम लोग जो हमारी एक्टिविटी 4 है इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। Spread some iron fillings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron fillings stick all the over magnet? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? To some parts of the magnet that remove the iron fillings sticking on the magnets and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings also, and also with magnets of different shapes. Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in figure 10.6a? We find that the iron fillings are attracted more towards the region close. The two ends of a bar magnet poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shape to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. Can you now mark the location of poles in the kind of magnet shown in figure 10.4? तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स तो आप लोगों को सॉइल और एक पेपर की शीट में आप लोगों को फैला देनी है और उसके बाद आप लोगों को उसमें मैग्नेट चिपका लेना है और फिर उसके बाद आप उस मैग्नेट को हटा के फिर सॉइल में जब लगाएंगे तो क्या कोई पैटर्न चेंज आपको मिलेगा? क्या उसमें कुछ ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपक चुकी होंगी, ऐसा आपको कुछ मिलेगा? अगर आपको मिलता है तो आप इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करेंगे और फिर क्या अगर कोई चेंज मिलता है इस पैटर्न में कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कुछ अलग तरीके से हुआ है, तो ये एक्टिविटी आप लोग दूसरी चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, खाली आयरन फिलिंग के साथ नहीं। जैसे पिन्स हो गई, आयरन नेल्स हो गए और आयरन फिलिंग्स को उनके साथ भी कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट शेप के साथ। तो आपको एक आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट का एक ड्राइंग बनाना है, डायग्राम, और उसमें एकदम बिल्कुल सिमिलर करना है। कैसे? जो इस वाली जो फोटो है, फिगर है 10.6, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर उसके जो दो एंड्स है पोल्स में, उसमें क्या वो जो उनके एंड के बिल्कुल पास में क्या आयरन फिलिंग्स भी होनी चाहिए। और जो मैग्नेट्स हैं इनके शेप टू द क्लासरूम, इनके शेप आप लोग अपने क्लासरूम की जैसे भी बना सकते हैं, क्लासरूम में रख भी सकते हैं। और जो लोकेशन है पोल की वो भी किसमें आयरन फिलिंग से ही आप लोग को बनानी है। और क्या जो लोकेशन है पोल्स इन काइंड ऑफ मैग्नेट इज शोन फिगर 10.4, जैसा 10.4 फिगर में है बिल्कुल आप लोगों को वैसा ही बनाना है। जैसे देख लेते हैं 10.4 में कौन सा फिगर है, ये 10.5
एंड दिस वॉज 10.4। ऐसे ऐसे मैग्नेट्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स को जानने के लिए। तो इधर हमारी एक और टॉपिक आता है फाइंडिंग डायरेक्शन। तो इसे भी चलिए स्टार्ट करते हैं। Magnet were known to people from magnets were known to people from ancient time. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor of China named Hong Ti. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any directions. It had extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By the looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new place on his chariot. Let us make such a direction finder for ourselves. तो यहाँ पर क्या है कि एक राजा हुआ करते थे। ये जो मैग्नेट्स है ये लोगों को बहुत पहले से पता है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। कई सारी प्रॉपर्टीज़ लोगों को पहले से पता था। तो एक राजा थे चाइना के होंग टी, उनके पास एक स्टैचू था, एक कैरियोट था, चैरियोट, जिसमें क्या था कि उस चैरियोट में एक लेडी का स्टैचू था और वो लेडी का स्टैचू हमेशा हमेशा के हमेशा हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अपना हाथ दिखाता था, जिससे पता चलता था कि साउथ डायरेक्शन में क्या है। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये चैरियोट विद डायरेक्शन, ये जो रथ के पीछे अब जहाँ बैठते हैं लोग वह उसी को चैरियोट कहते हैं। तो इस चैरियोट के ऊपर क्या एक लेडी का स्टैचू था जो कि क्या बताता था, साउथ डायरेक्शन के बारे में। तो साउथ डायरेक्शन इधर को होगी। ये चैरियोट जो था ये बताता था ये होंग टी के पास था, जिससे क्या होता था कि जो राजा है वो कहीं भी नई जगह जाते थे तो इसको लेके जाते थे, जिससे इनको पता चल जाता था। ये तो राजा के पास चैरियोट हो गया। हमें भी अपना खुद का चैरियोट या डायरेक्शन फाइंडर को बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इधर एक एक्टिविटी 5 है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना भी चैरियोट बना लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ mark on the of its end of identifications. Now tie a thread on the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to a rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. Draw a line joining 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointed in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. Again mark the position of the two ends, its position of rest. Thus the magnet now point in a different direction. Rotate the magnet in the other direction and note the final direction in which it comes to rest. Do you find that the magnet always comes to rest in the same direction? Now you can guess the mystery behind the statue in the emperor's chariot. Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other materials also always come to rest in the same direction? We find that freely suspended bar magnet always come to rest in a particular direction, which is north south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east to your left will be north. Using the sun for finding direction may not be very exact,
but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. The end of the magnet that points toward north is called its north seeking इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग. तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक मैग्नेट ले लेना है, फिर एक वुडन की एक लकड़ी ले लेना है, उसके सामने आपको एक थ्रेड से उसे बांध लेना है. फिर क्या, उसको बांधने के बाद आप लोगों को कई डायरेक्शन में इतना ऐसा बांधना है कि जो मैग्नेट है वो फ्रीली हर जगह घूम रहा हो. और फ्रीली जब वो घूमेगा तो एक आप लोगों को इसके लिए एक हैवियर चीज़ चाहिए होनी है. खाली हैवियर चीज़ ही इसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि लाइटर चीज़ जो है वो हवा के डायरेक्शन से कहीं भी मुड़ जाएगी. लेकिन अगर आप हैवी चीज़ रखोगे तो इसमें क्या होगा कि वेट पड़ेगा और वो खाली एक जगह ही रह पाएगी. जैसे कि स्केल हो गया, वुडन स्केल. तो इससे क्या होगा कि एक जगह आप लोग उसको बांधेंगे और उधर मैग्नेट लगा देंगे साउथ की डायरेक्शन की तरफ. तो जिससे क्या होगा कि मैग्नेट हमेशा साउथ की डायरेक्शन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा. और ये था क्या मिस्ट्री जो कि एम्परर्स के कैरियर के पास था. तो ये होता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो जो द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग. तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक मैग्नेट होता है. मैग्नेट के दो साइड होते हैं. एक साइड नॉर्थ जिसे हम लोग एन भी कहते हैं, दूसरी साइड एस जिसे हम लोग साउथ जिसे हम लोग एस भी कहते हैं. तो नॉर्थ मतलब एन और साउथ मतलब एस. और अगर हम लोग को दो मैग्नेट को एक तरफ अट्रैक्ट कराना है तो क्या, जो हमारा मैग्नेट ए है वो कौन सा, हमारा मैग्नेट ए का साउथ डायरेक्शन और मैग्नेट बी का नॉर्थ डायरेक्शन जब ऐड होगा तो तब हमारा मैग्नेट अट्रैक्ट होगा. अगर हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन और बी मैग्नेट का भी नॉर्थ डायरेक्शन अगर मेन कराएंगे, अट्रैक्ट कराएंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अब क्या है कि ये तो नॉर्थ और साउथ के बारे में हो गया. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस फॉर सेंचुरीज. This property of magnets to find direction. It is said that in olden days traveler used to find direction by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them. सॉरी. तो यहाँ पर क्या था कि ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है बहुत ही यूज़फुल होती है हम लोगों के लिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. पर अब क्या हो गया, अब गूगल मैप्स आ गया है, जिससे क्या होता है कि हम लोग डायरेक्शन एकदम आसानी से फाइंड कर लेते हैं. लेकिन क्या होता था पुराने ज़मानों में लोग यही यूज़ करते थे. और जो पहले के पुराने लोग थे वो कंपास का यूज़ करते थे. जैसे कि कोलंबस है, उन्होंने जब अमेरिका की खोज करी थी तो उन्होंने कंपास के साथ ही खोज करी थी. आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, ये जो सर्कल सा है यही है कंपास विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट. इसमें सारी जो डायरेक्शन होती है वो मार्क होती है. और इसमें एक मैग्नेट लगा होता है जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है. हमेशा नॉर्थ की तरफ ही ये अट्रैक्ट होता है. अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी सुई नॉर्थ की ही में ही है. अब इधर देखिए, अब आपको इधर एक चीज़ मिल रही होगी. अब गौर से देखिए एकदम, ये आप पूरी निडल आप लोग देख पा रहे होंगे कैसी है, सिल्वर सी है. पर इसके नॉर्थ में आप इधर देखिए थोड़ा रेड है, रेडिश. यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा रेड आपको पार्ट दिख रहा होगा. ये रेड पार्ट क्या होता है, ये होती है मैग्नेट. ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी डायरेक्शन हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाती हैं. तो ये जो टॉपिक था तो कंप्लीट हो गया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेक योर ओन मैग्नेट. ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 10
फन विद मैग्नेट्स। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो टॉपिक है मेक योर ओन मैग्नेट, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। There are several methods of making magnets. Let us learn that the simplest one. It on the table. Now take a bar magnet and place on of its poles near one edge of the bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the same pole you started with to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30-40 times. Bring a pen or some iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for making more time. Remember that the poles of the magnet and the direction of its movement should not change. You can also use an iron nail, a needle, or a blade and convert them into a magnet. You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कुछ मेथड्स है मैग्नेट बनाने के लिए। उसमें हम लोग को सबसे सिंपलेस्ट मेथड्स यूज़ करना है। तो हम लोगों को क्या, एक मैग्नेट एंड प्लेस ऑफ वन पोल्स नियर वन एज, एक पोल्स के नियर में एक एज और एक मैग्नेट का बार चाहिए होगा जो आयरन पोल एज के पास में हो। और किसी भी आयरन मैग्नेट को बिना लिफ्टिंग करे उसकी जो लेंथ है बार की, उसे हम लोगों को उसका आखिरी जो पॉइंट है उसे ले लेना है। और क्या करना है कि जो मैग्नेट है उसे the pole to the same points of the iron bar from which you began. Move the magnet against the iron bar in the same direction as you did before. तो यहाँ पर क्या करना है कि जो मैग्नेट है उसको जो डिफरेंट डायरेक्शन है वहीं पर मूव करना है। और क्या, ये जो आपको ये जो प्रोसेस है इसको 30-40 टाइम्स आपको रिपीट करना है। और फिर क्या होगा, ये जो आप लोग देख पा रहे हो मेकिंग योर ओन मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या एक मैग्नेट का पोल है और ऊपर क्या मैग्नेट है। इसको बार बार आपको इसमें रब करना है 30-40 टाइम्स। और उसके बाद क्या आपका मैग्नेट बन जाएगा। बस इतना सिंपल आपका मैग्नेट बन जाएगा। इससे फिर आप लोग कुछ भी चिपका सकते हो, आयरन नेल और निडल, ब्लेड, बहुत सारी चीज़ें भी। तो इधर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, इसे भी हम लोग चले कर लेते हैं। Magnetize an iron needle using a bar magnet. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. Let the cork float in water in the bowl or a tub. Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. Make a note of the direction. Make a note of the direction in which the needle point when the cork is floating. Rotate the cork with a needle fixed in it in different direction. Note the direction in which the needles point when the cork begin to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को क्या एक वाटर ले लेना है, कप में वाटर, और उसमें जो कॉर्क होता है उसको बीच में डाल देना। और जो कॉर्क है उस कॉर्क के पीस को उसमें फ्लोट करना है। और फिर क्या, जो फोम जो होगा वो जब आ जाएगा तो क्या आपका जो कंपास है वो रेडी हो गया वर्क करने के लिए। और फिर जो डायरेक्शन जो बताए उस डायरेक्शन को आपको जो कप है उसमें एक आप लोगों को यहाँ पर एक नॉर्थ लिख देना है एन, और एक जगह आपको साउथ लिख देना है। और फिर जो कॉर्क है वो जिस जगह जाएगा वो कौन सी जगह हो जाएगी, नॉर्थ या साउथ। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 6 कंप्लीट कर लिया। अब इधर एक हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम।
With magnets, take two small toy cars and label them A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. Uh, in a car A, keep the south poles of the magnet towards its front. Place the magnet in opposite direction in car B. Now place the two car close to one another. तो ये एक्टिविटी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ, बुक की भाषा छोड़िए, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखिए, आपको कुछ कार ले लेनी है, टॉय कार्स, रियल कार्स नहीं, टॉय कार्स लेनी है, ब्लू रेड किसी भी कलर की, और उनके ऊपर आपको मैग्नेट का बार जो होता है उसे लगा देना है। और फिर एक कार के ऊपर आप लोगों को जो नॉर्थ वाली साइड है उसको आगे रखना है, और दूसरी वाली कार के ऊपर आपको साउथ वाली साइड आगे रखना है। जैसे आप लोग इस फिगर को देख पा रहे होंगे, ए और बी फिगर को। तो इससे क्या होगा कि दोनों कार अट्रैक्ट हो जाएंगी एक दूसरे में। फिर क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगी। पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं कि अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती है, फिर उसके बारे में इसके पीछे की थ्योरी जानेंगे कि ऐसा होता क्यों, इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर आप लोग इधर फिर सी और डी में क्या देखेंगे कि आप लोगों को क्या, जो मैग्नेट है उन दोनों गाड़ियों में सेम डायरेक्शन में मैग्नेट रख देना, नॉर्थ आगे साउथ पीछे, साउथ आगे नॉर्थ पीछे। मतलब कि जैसे साउथ और साउथ को सामने सामने रख दोगे तो क्या गाड़ी अट्रैक्ट नहीं होंगी। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, रिपल्शन क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए होगा, इनके बीच में रिपल्शन इसलिए होगा क्यों, देखिए जो फिगर ए और बी है उसमें क्या है कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है साउथ पोल से, तो और साउथ पोल अट्रैक्ट होता है नॉर्थ पोल से, इस वजह से ये दोनों गाड़ियां अट्रैक्ट हो जाएंगी। और सी और डी में क्या कि साउथ पोल से थोड़ी ना अट्रैक्ट होगा, या नॉर्थ पोल से थोड़ी ना अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए इनके बीच का रिपल्शन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय अ पोल्स अनदर मैग्नेट नियर इट। तो ये जो एक्टिविटी यानी ये जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, ये भी एक बहुत ही मैटर करती है इन सब के ऊपर। यहाँ पर फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्यू क्वेश्चंस। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। टू कीप देम सेफ, बार magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends. For example, for horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. Keep magnets away from cassettes, mobiles, televisions, music systems, कॉम्पैक्ट डिस्क सीरीज एंड द कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस में कि अगर मैग्नेट को गर्म करा जाए, हीट करा जाए, या उन्हें तोड़ा जाए, मतलब कि हथौड़े से उनको ठोका जाए, या उसे हाइटों से गिराया जाए, सम हाइट से उसको फेंक दिया जाए, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टीज उन्हें खो सकता है। और ये जो मैग्नेट्स है ये वीक ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर दो मैग्नेट को हम लोग जोड़ दें, गिरा दे, तोड़ दे, या उसमें पानी डाल दे, या उसको हम लोग टेलीविजन के बगल में रख दे, कैसेट्स के बगल में रख दे, या कैसेट्स के बगल में, मोबाइल फ़ोन के कॉम्पैक्ट डिस्क के बगल में, और कंप्यूटर के बगल में अगर हम लोग आयरन रख दे, वो मेटल अपना मैग्नेट रख दे, तो मैग्नेट हमारा डिफेक्टेड हो सकता है, ख़राब हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकता है और वीक हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म हो चुका है, कितनी खुशी मिल रही है। अब जो इसके कीवर्ड्स हैं वो हम लोग भी इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। इसके कीवर्ड्स हैं कंपास, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसके कुछ 5-6 कीवर्ड्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।